mode, there is a button of hand, raising of hand. You just put the raising of hand, I will come to know. So मेरे को जानना है कि आप लोग में से कितने जन लास्ट सेशन अटेंड किए थे. How many of you have attended the last session? Sir, I missed it. Okay, no issues. आप जो भी attend किए थे, please raise your hand so that I can understand. Okay, I think maximum are saying no. So this is the first session for yours. Okay. So हम लोग स्टार्ट करेंगे कि change your destiny, और change your destiny के अंदर में स्पेशली फर्स्ट एस्पेक्ट था our thoughts emotions. हमारे थॉट्स इमोशंस और फिजिकल एक्शंस कैसे होते हैं, और वो एक्शन के अगेंस्ट में ही हमारे साथ में सारे रिएक्शंस होते हैं. तो वो रिएक्शन है कि एक्शन है, ये था एक अंडरस्टैंडिंग. एंड मोस्ट देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज. उसके बारे में अपने बात किए थे. बट हाउएवर जो है सो है, उसके अंदर में हम लोग दो टॉपिक पे डिस्कस किए थे. लव, हाउ टू जनरेट लव. एक जनरेशन ऑफ लव था फ्रॉम हार्ट एंड क्राउन, एक्टिवेशन ऑफ हार्ट एंड क्राउन, ट्यून हार्ट मेडिटेशन. एक टेक्निक ये था. दूसरा टेक्निक था कि हम लोग कैसे जान पाएंगे कि हमारे इमोशंस नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं. सो हाउ टू बी अवेयर ऑफ द ब्रेथ. तो हम लोग दो टेक्निक लर्न किए थे. ब्रेथ के ऊपर में कैसे ध्यान रखते हैं जिससे कि हम लोग अवेयरनेस हो सकता है. दूसरा हम लोग किए थे एक्टिवेशन ऑफ हार्ट एंड क्राउन. ओके, सो ये टॉपिक था. नाउ व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एन इन्वोकेशन. ओके, just put your hands together on your heart. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Divine Providence, with the blessing of whom everything is possible. Thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine guidance, divine love, mercy, inner healing, physical healing. Thank you for the inner strength to do what is right and refrain from unwholesome thoughts, actions, and behavior. Thank you for your divine help and divine protection, with illumination, abundance, prosperity, with wisdom, discernment, goodwill, and the will to do it. To all the spiritual gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, my higher self, thank you for your priceless blessings. With lots of gratitude, respect, and love, thank you. So, welcome you all in this session. On behalf of GMCK's Pillar of Light, I welcome you all. And now, today the topic is again the change your destiny. But the good part is, I will share with you the latest realization and the latest experience of my life. So यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को अपना डेस्टिनी चेंज करना है, आर यू इंटरेस्टेड इन चेंजिंग योर डेस्टिनी? Do you think that you can change your destiny? Please raise your hand. Okay. Okay, good, very good. Everyone is now aware that yes, we can change our destiny. Last session में हम लोग ये बात किए थे कि क्या हम लोग अपने destiny change कर सकते हैं, and we all were, yes, we can. Okay, some are saying that not sure. That's okay. If you are not sure, then also there is no issue. अगर हम लोग sure नहीं है तो भी कोई बात नहीं है. We can follow the process. एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग बचपन में से बड़े हुए और हम लोग के लाइफ के अंदर में जैसे हम लोग को सबसे पहले साइंस में जब हम लोग गए तो साइंस में क्या होता है कि थ्योरेटिकली कुछ बताया गया था हम लोगों को, बट हम लोग लगता था इट्स नॉट श्योर ये सब हो सकता है क्या ऐसा हमारे लाइफ के अंदर. बट जब वो साइंस में हम लोग को थ्योरेटिकली कुछ बताया गया एंड देन वी एक्सपेरिमेंटेड, कि वो एक्सपेरिमेंट करके देखे एंड देखते हैं कि रिजल्ट आता है. सो दिस इज व्हाट, इफ यू आर नॉट श्योर, नो इश्यूज. आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने लाइफ में, एंड देन आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा रिजल्ट वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर वैसा रिजल्ट आता है देन एक्सेप्ट, यस. हाउएवर
what I believe is yes, we can change our destiny, and we will talk about it today. सबसे अच्छा पार्ट है कि हम लोग I myself is blessed by my teacher, Grandmaster Chokoxy. और the most important part is कि I take him as a soul technician. माने इनके स्कूल में एक सबसे बड़ा बात है कि ये हर वक्त हम लोगों को कुछ ना कुछ टेक्निक सिखाते हैं. तो जैसे अपने गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपने कितने सारे टूल्स लेके चलते हैं ना कि अगर ये हुआ तो ये टूल्स यूज करेंगे, ये हुआ तो ये टूल्स यूज करेंगे. So when we drive a car, we carry a tool with us. So I will request everyone, don't ask me to say in English or Hindi, but देखिए आप अगर concentrate करेंगे, if you try to listen to me, you will understand everything. अगर आप बार बार इंग्लिश हिंदी करेंगे तो मेरा रिदम ब्रेक हो जाएगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोनों चीज में बताने का. ओके, ट्राई टू कैच. सो वेयर वी वेर कि इफ यू ड्राइव अ कार, वी कैरी टूल्स विद अस कि अगर something happens in the car, we has instrument to repair the car. Similarly, if we take ourselves as a car, the station, last time में हम लोग बात किए थे कि हम लोग यहाँ आए हैं तो एक स्टेशन पे आए हैं और इट्स लाइक तो अगर हमारे लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आते हैं तो व्हाट हैपेंस, हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ते हैं कि आपको काम रहना पड़ेगा, आपको पीसफुल रहना पड़ेगा, ये रहना. बट सबसे बड़ा इशू हम लोग के साथ ये होता है कि कैसे रहें, व्हाट इज द टेक्निक टू डू दैट. तो पुराने के स्कूल के अंदर में एक सबसे अच्छा चीज है, वी गेट टेक्निक्स, we get techniques and we understand the root cause of things. और जब हम लोग रूट कॉज के बारे में समझ जाते हैं तो हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सो आज का सेशन मैं सच बताऊंगा, मैं इस सेशन को डेडिकेट कर रहा हूँ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड. और आई कैन से दैट कि गॉड हैज सेंट दिस फ्रेंड टू मी to not only learn some lessons but also at the same time to help me to grow. So सबसे पहले, अगर ये मेरा फ्रेंड अगर देख रहा होगा, फेसबुक पे भी हो सकता है, फेसबुक पे भी हम लोग लाइव है तो हो सकता है वो देख रहा होगा, सो वो समझ जाएगा कि मैं किसको बोल रहा हूँ. और उसको मैं सच बताता हूँ, तहे दिल से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का पूरा जो सेशन है, आज उसने जो मेरे को एक्सपीरियंस दिया, जो मेरे को रियलाइजेशन दिया, आज ये पूरा सेशन उसी के ऊपर होने वाला है. हाँ, जरूर से हम लोग जो लास्ट में जाएंगे, व्हेन वी विल गो टू द एंड, बिकॉज आई एम टेलिंग यू व्हेन वी गो टू द एंड वी विल यूज द टेक्निक्स, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या टेक्निक यूज किया जिससे कि मैं उस सिचुएशन से बाहर निकला. बट द टेक्निक आई हैव यूज्ड ओनली व्हेन आई हैव कम इनटू अ सर्टेन सिचुएशंस. So the most important part which my guru Grandmaster Chokoxy says that if you want to change your life, आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, if you want to change your life or you want to change your destiny, the thing is that you don't try to change the world, you change yourself. You don't try to change the world, you change yourself. And we also know that even great ones have come on earth and they have said the same thing. Don't try to change others, try to change yourself. And the three important things which we have to remember, if we want to change our destiny and if we want to change ourselves, and the three things are art. Art means acceptance, R means responsibility, and T means tolerance. अब आपको मैं बताऊंगा कि अपने जब भी टॉलरेंस का वर्ड सोचते हैं तो हम लोग बोलते हैं मैं कितना देर तक टॉलरेट करूं, बट टॉलरेशन इज डिफरेंट. आपने समझ नहीं पाते टॉलरेंस क्या है. बट ये एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो मैं जस्ट एक नरेट करना चाहता हूँ. आई वांट टू नरेट वन एक्सपीरियंस ऑफ माइन व्हिच हैपेंड विद मी यस्टरडे. एंड दिस माय फ्रेंड, since past some weeks, this my friend has been
has been not talking to me in a very the way this friend used to talk to me, and at the same time he was not communicating the way this my friend was communicating before. So उसके जो शब्द होते थे, जो उसके वर्ड्स होते थे, वो वर्ड्स जो है मेरे को ऐसा लगता था कि इट इज आउट ऑफ एंगर या समथिंग इज देयर, और मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ये बात कि क्यों, और ना ही मैं रिफ्लेक्ट करने का कोशिश कर रहा था, बट मेरे को लग रहा था कि ये गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, ये मेरे को नहीं समझ रहा है। हो सकता है कि मेरी कोई बात बुरी लगी हुई, कुछ भी हुई, तो बट मेरे को समझने का कोशिश करे, मैं ऐसे ही सोचे जा रहा था। तो कल कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि मेरे साथ फोन पे बात हुआ, और एज वी ऑल आर अवेयर दैट कि वेस्ट बंगाल में कल सडनली लॉकडाउन अनाउंस हुआ, और कल लॉकडाउन अनाउंस होने के कारण क्या सडनली सारा काम करना था, और एट द सेम टाइम क्या हुआ कि मेरे को कल एक अचानक अर्जेंट एक सेशन भी लेना पड़ गया। जो ऑलरेडी जो फैसिलिटेटर सेशन लेने वाले थे, उनको लॉकडाउन के कारण वो अपने ऑफिस में अटक गए, और उस कारण से मेरे को सेशन लेना था। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स मेरे को सारा कुछ करना है कि मेरे हाथ में जो काम थे उसको भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, और एट द सेम टाइम सेशन भी लेना पड़ेगा। और सिंस आई माई सेल्फ इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरा अभी वर्कलोड इतना है, सबको वर्क फ्रॉम होम करना है, तो उसका सिस्टम भी सेट करना है। तो समवेयर मैंने इस फ्रेंड को कॉल किया टू गेट अ हेल्प, बट समहाउ क्या हुआ कि वो हेल्प के बारे में बात करने के आगे will request the audio to so somehow मैं उस समय में जब मैं फोन पे बात कर रहा था, तो आई वॉज वेरी लाइट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, बट सडनली मैंने उसको ऐसा कुछ लिखा था जो जनरली मेरे को लिख रहा था इन दिनों में, और इसीलिए मुझे मेरे को वो देखने के बाद जब वो मेरे को कॉल किया, सबसे पहले उसके बारे में बोला, और मेरे को थोड़ा सा उस बात को लेके ना एक बार बहुत जोर से गुस्सा आया एक बार, कि मेरे को लगा कि क्या ये आप क्या ऐसा बात बोल रहे हो मेरे को, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और फिर उसके बाद वो इतना शांत था, बट मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं फिर अपने आप को समझाने का कोशिश कर रहा था, नहीं 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 नहीं, फिर सडनली मेरे को फिर एक बहुत जोर से गुस्सा आया, और मैं बहुत आउटबर्स्ट हो गया एक बार के लिए। और मैं वो आउटबर्स्ट होने के बाद में मैं लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया। सिर्फ डिस्कनेक्ट किस लिए किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि और वो फर्दर एक बार के लिए मेरा बढ़े। एंड दैट टाइम आई यूजेस द टेक्निक्स जो ग्रैंड मास्टर चौकोक्सी ने हमारे को बताया है, वो टेक्निक मैं यूज किया। उसमें से कुछ एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो टेक्निक हम लोग शेयर कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल टेक्निक्स है। और उसके अलावा और भी बहुत टेक्निक यूज किया टू काम मी डाउन, सो दैट कि 1 घंटा बाद मेरे को जो सेशन लेना था मैं सेशन भी ले सकूं। बट बिलीव मी, जब मैं सेशन ले रहा था, और वो सेशन ही ऐसा था जिसके अंदर में था कि मेरे को मैं सबको बता रहा था कि कैसे हम लोग अपना कोई पास्ट इवेंट है उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो मैं जब वो कर रहा था, और वो टॉपिक था फाइनेंशियल हीलिंग, और वो फाइनेंशियल हीलिंग के अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एंगर। और मैं उस एंगर के बारे में जब बोल रहा था, तो मेरे को रियलाइज हो रहा था कि मेरी क्या मिस्टेक हुई वहां पे। मेरा सबसे पहला मिस्टेक था एक्सेप्टेंस। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है। मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं सिंस उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो मेरे में पेशेंस नहीं डेवलप हो रहा था। और सिंस वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर नहीं ले रहा था। मैं बार बार मेरे माइंड में ब्लेम उसी के सामने ऊपर जा रहा था कि वो ऐसा बिहेव कर रहा मेरे साथ, वो ऐसा बिहेव कर रहा। बट बाद में रियलाइज हुआ कि वो ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन हुआ था। आई विल से नॉट एक्शन, मेरा पास्ट में कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन हुआ था जिस कारण से वो ऐसा बिहेव कर रहा था मेरे साथ। तो जब हम उसके साथ कन्वर्सेशन में थे, उस समय में मैं कोई हालत में एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था, और ना ही मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी था कि मैं ये मेरा गलती है। उसका गलती बाद का बात है, बट पहले मेरे को अपना समझना होगा मेरा गलती क्या है। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसके ऊपर कि वो गलती मेरी थी। I was trying to blame the other person, but it was my fault. And सबसे important बात, टॉलरेंस।
क्यों मैं उस फ्रेंड को हरदम बोलता रहता हूँ कि देखो तुम एकदम मेरे जैसे हो, तुम मेरे जैसे हो, तुम मेरे जैसे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने लाइफ में वो गलती करो जो मैं गलती किया हूँ। तुम मेरे जैसे हो, मेरे जैसे हो। तो मेरे को बाद में उसी समय में रियलाइजेशन हुआ कि समझो मैं इतना गलती किया, और मैं जो गलतियां किया पास्ट में उसको किसी ने टॉलरेट तो किया था ना उस समय में, तभी मैं आज इतना जाके इम्प्रूव हो पाया। तो अगर आज ये अगर गलत भी कर रहा है तो उसको मेरे को टॉलरेट तो करना चाहिए ना। आई हैव टू हैव डीप कंपैशन कि कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने भी ऐसे सीखा है, ये भी है, बट ठीक है, मैं साथ में हूँ उसके। और मैं अगर उसको टॉलरेट कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो शायद हो सकता है मैं उसको नर्चर भी कर सकता हूँ। तो ओवरऑल सिचुएशन में मेरे को समझ में आया कि द थिंग वाज आई वाज नॉट एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स। और जैसे ही मैं जो ड्यूरिंग द सेशन जब मैं ये सारा चीज हुआ, तो मेरे को अचानक जब ऐसा रियलाइजेशन हुआ, आई वाज वेरी काम, वेरी पीसफुल। और बिलीव मी, मेरे को एक पैसा का भी उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं आया बाद में। उल्टा मैं अपने अंदर में सोच रहा था कि वाओ, अगर ये नहीं होता तो आज मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, और ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती तो शायद मैं अपना एक्शन, जो मेरा रिएक्शन था, वो और बढ़ते जाता और वो मल्टीप्लाई होता। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ में अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है या अपने आप को चेंज करना है, तो 3 चीज आपको ध्यान रखना है: एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस इज व्हाट, ये नहीं कि हर गलतियों को आप टॉलरेट कीजिए, बट टॉलरेंस इज दैट कि आपको एक कंपैशन तो शो करना पड़ेगा कि ये हो सकता है। अगर मैं भी अपने लाइफ में गलतियां किया हूं तो कोई टॉलरेट किया था। सो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 2-3 स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन लिसनिंग दिस स्टोरी? यस, जस्ट रेज योर हैंड। यस यस, ओके ओके ओके। सो ये स्टोरी ऐसी है, जब हम लोग टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं, तो एक बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट अब्राहम, वो उनके यहाँ पर उनके पास जो भी आते थे उनको वो पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, और उनको बोलते थे कि भगवान का नाम लो। तो ऐसे एक बार एक जन आता है और उसको वो खाना और पानी देते हैं, और उसको बोलते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, और वो मना कर देता है। जब वो मना कर देता है तो उनको बहुत जोर गुस्सा आता है और वो अपने टेंट से उसको बाहर निकाल देते हैं। When he gets so much angry that he just send him out of the tent. At that moment of time, what happens? God appears in front of him. And God appears, it does not in the physical form. And then at that moment of time, he realized God has been tolerating this person. God says him that I have been tolerating this person for 38 years. You could not tolerate for one day. सो दिस इज ऑल अबाउट टॉलरेंस। हम लोग टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं, तो टॉलरेंस आएगा कैसे, ये कैसे आएगा, वो हम लोग बात करेंगे एकदम लास्ट में। आई विल गिव यू द टेक्निक, ये टॉलरेंस ला कैसे सकते हैं हम लोग इस सिस्टम में। तो इसका मतलब है कि आपको लास्ट तक रहना पड़ेगा। आज मैं कोई भी चीज पहले नहीं देने वाला हूँ, मैं सारा चीज बाद में दूंगा आपको। ओके, सो ये हो गया टॉलरेंस की बात। और रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, ये हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग की हैबिट है, हम लोग दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं, बट ये होना नहीं चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मिस्टेक हुई है तो मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स। और एक्सेप्टेंस, सिचुएशन जैसे भी हो, हम लोग को उसको एक्सेप्ट करना जानना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग ये एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टॉलरेंस की जो बात कर रहे हैं, ये इसका फायदा क्या होगा, क्यों, क्या दरकार है। अगर कोई गुस्सा किया तो उसको उस पर गुस्सा करना चाहिए, तो इसका फायदा क्या होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे एक्शन एंड रिएक्शन की बात, और वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। बट उस समय में हम लॉ ऑफ कर्मा के बारे में पूरा डिटेल नहीं बात किए थे, खाली ऐसा बात बोले थे कि ऐसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। सो वी नो कभी कभी कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जो अपने को लगता है वो गलत है, बट उससे बहुत जन का भला होता है। तो अगर उससे बहुत जन का भला हो रहा है तो समवेयर यू आर डूइंग गुड थिंग।
वैसे एक स्टोरी है, उसमें ऐसा हुआ था कि एक राजा से जो है एक मॉन्स्टर, एक जानवर का, वो एक राजा जो है एक जानवर को मार देता है। जब वो जानवर को मार देता है तो उसको अंदर से गिल्ट होता है कि वो क्यों मार दिया। तब उसी समय में भगवान आते हैं और उसको बोलते हैं कि नहीं, ये तुमने कोई गलती नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जो जानवर के रूप में घूम रहा था और लोगों को मार रहा था। तुमने इसको मार दिया, इससे बहुत अच्छा हुआ। तो एक बार के लिए जब हम लोग सुने ये बात तो हम लोग को क्या लगा, अरे कैसे तुम एक जानवर को मार सकते हो। परंतु वो जानवर एक्चुअल में एक मॉन्स्टर था। तो इसीलिए कभी कभी कुछ गलत काम भी अगर हम करते हैं बट उससे लोगों का भला हो जाता है, सो उसमें ऐसा नहीं होता है कि कुछ गलत हो गया। तो हम लोग जब लॉ ऑफ कर्मा को जानने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ये जानना है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो आप लॉ ऑफ कर्मा के अंदर में अपने एक ही बात किए थे लास्ट टाइम भी कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, माने पॉजिटिव कर्मा और नेगेटिव कर्मा। कर्मा क्या है? कर्मा सिर्फ फिजिकल एक्शन है क्या, या फिजिकल एक्शन के अलावा भी और कुछ होता है? प्लीज टेल मी। आप चैट में डाल सकते हो कि क्या ये फिजिकल कर्मा, फिजिकल एक्शन को ही कर्मा बोलते हैं कि और भी कुछ है? Sir, thoughts, words and आप, deeds. हाँ, आप ऑडियो मत ऑन कीजिए, आप मेरे को चैट में बता दीजिए, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप क्या समझ रहे हैं। मेंटल थॉट्स, ओके, गुड। एंड मेंटल थॉट्स के अलावा वर्ड्स, यस। तो अगर हम लोग कभी भी किसी को, whenever we say something wrong to someone, then also we are creating negative impact. If we even think about someone, we are creating something negative impact. I think most of the people have experienced that you are thinking about someone and the person give you a call. Yes, this happens to most of you. You are thinking about someone gives you a call, someone comes. Yes, this happens. Yes. So what this means, what your thought is traveling to that person. Similarly, if you have a positive thoughts about a person, that will go to him, and if you have a negative thoughts about that person, that will go to him. So in both the case it will affect him. If it is positive, then also it will affect him, but it will affect positively. If you have a negative thought about someone, it will affect him negatively. Similarly about the words have power. So if you speak very kind words, it will affect the person. If you speak something wrong about that person, it will affect that person, because words have also power. So physical, emotion and mental, all are karma. Whether you don't act physically, but even if you are just having a thought, negative thought, that is also creating a karma. And how we can understand this karma? अगर अपने यहाँ पर accounts background के most of the people होंगे, a person who knows about accounts, so if we can take karma as assets and liabilities. When we do something good, that is like an asset. Asset क्या होता है? Like समझ लीजिए आपके प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे सकते हैं, तो इट्स एन एसेट, रिकरिंग आपको इनकम देता रहेगा। क्लियर? अगर आपके पास में कैश है और उसको आप एफडी कर देते हैं तो आपको रिकरिंग इंटरेस्ट देता रहेगा। इफ यू मेक समथिंग एसेट, अगर समझ लीजिए आपके पास में गाड़ी है और जैसे आपका अगर बिजनेस है, बिजनेस के अंदर में आपके पास में कंप्यूटर है, दैट कम्स इनटू एन एसेट। तो 2 ईयर 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स जब तक उसका लाइफ है तब तक वो आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करके देता रहे, तो दैट इज एन एसेट। एट द सेम टाइम हम लोग के साथ में कुछ लाइबिलिटीज भी हो जाती है, अकाउंट्स में हम लोग लाइबिलिटीज भी होती है। लाइबिलिटीज व्हाट? दैट इज पेएबल, इज एन ऑब्लिगेशन टू पे। यस। सो ऐसे ही अगर हम कुछ नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं तो इट बिकम्स अ लाइबिलिटी एंड इट विल वी हैव टू पे सम टाइम। जरूरी नहीं कि आज ही पे करना होगा, इट बिकम्स पेएबल। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है उसी पे चलता है।
लॉ ऑफ कर्मा के अंदर में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। अगर आप इसको ऐसे समझ सके, जैसे मैंने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में आपको बात किया, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम लोग एरो के बारे में बात करते हैं, एरो जानते हैं ना, एरो, यू नो अबाउट द एरो? यस। सो व्हेन वी टेक अ बर्थ, it's like I have taken a birth and I have an archery, so in that there are arrows. तो जो मेरे पीछे में arrows हैं, that is what? That is a karma. I have taken that karma with me in this incarnation. But इसमें क्या होता है? One is we are taking the shot और one we have taken the shot. अगर एक बार हम तीर चला दिए तो वो क्या हो गया? वो एक कर्मा है जो जिसका फल मिलने वाला है। और अगर हम तीर नहीं चलाएं, अभी भी मेरे पास है, तो मेरे पास चॉइस है, हम चला भी सकते हैं, नहीं भी चला सकते। तो जो मेरे पास में कर्म है, the karma which I have bought with me, that may be negative karma, that may be a positive karma, but that is stored with me, that has not ripened right now. But if I pull the trigger and the shot goes, then what? It will get matured. Then we don't have any choice, it has gone. But still, when it is in our hand, we have a choice. So when we have a choice, don't you think that we can change our destiny? Because law of karma क्या बोलता है? Whatever you sow, so you reap. आप जो भी बीज बोते हो, उसी को आपको मिलना है। तो आपने पास्ट में बीज बोया है, अच्छा बोया है या बुरा बोया है, जैसा भी बीज बोया है, अगर आप एंगर का बीज बोए हैं तो आपको क्या मिलेगा? एंगर। अगर आप पीस का बीज बोए हैं तो आपको क्या मिलेगा? बीज, पीस मिलेगा ना। तो आप वही कर्मा लेकर आए, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेके आए हैं। बट जरूरी नहीं है कि सारे एसेट्स अभी मैटेरियलाइज हो जाएंगे और सारी लायबिलिटीज भी अभी मैटेरियलाइज हो जाएगी। तो इसीलिए कर्मा के अंदर में क्या होता है, 3 लॉज हैं। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, वैसे ही 3 लॉ है कर्मा के। पहला, जैसा बीज बोयोगे वैसा ही मिलेगा। द सीड व्हिच यू sow, you will get the fruits like that only. It's a cause and effect relationship. Second, आज अगर हम लोग बीज बोते हैं तो फल आज ही मिल जाता है क्या? नहीं ना। Different fruits take different time. Different flowers take different times to. It takes time to mature. Yes or no? The growth, the period the mango matures, the bamboo tree matures. Both the time, both the take the same time. नहीं ना। आम को अगर 3 महीना लगता है, तो उसी तरह से अगर आप बम्बू ट्री के बारे में बात करो तो उसको कई साल लग जाते हैं ग्रो करने में। यस और नो? मैच्योर होने में टाइम लगते हैं। उसी तरह से हमारे कर्मा को भी मैच्योर होने में टाइम लगते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ये जरूर है, आज आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसा ही किया है, उसका मैच्योरिटी का टाइम आ गया, इसलिए मैच्योर्ड हो रहा है। माने जिसमें आपने तीर चला दिया, जो तीर चला दिए वो अभी मैच्योर हो रहा है। परंतु जो आपके पास स्टोर में पड़ा हुआ है तीर, वो तो आपका चॉइस है ना, आप कैसे चलाना चाहते हो उसको। एट ऑल आप चलाना चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो? यस, नो? सो अगर पास्ट में आप गलत किए हैं तो हम अभी भुगत रहे हैं, पास्ट में अच्छा किए हैं तो उसका भी फल मिल रहा है। इतने जन के साथ अभी मन में क्वेश्चंस हैं कि हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो लोग अभी कितने गलत काम किए जा रहे हैं, तो अभी भी उनको बहुत अच्छा अच्छा फल मिल रहा है। कितने जन के अंदर में ऐसा चीज है? प्लीज रेज योर हैंड। कि हम आज देख रहे हैं वो कितना गलत काम कर रहा है, फिर भी उसके साथ अच्छे अच्छा होते जा रहा है, और मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, okay, most of the participant thinks
कि यस ऐसा होता है कि उनका अच्छा हो जा रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। उनके साथ अच्छा क्यों नहीं, उनके साथ अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो पास्ट पॉजिटिव कर्मा था वो अभी मैच्योर हो रहा है। बट उनसे गलतियां क्या हो रही है कि वो अभी भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके कारण से उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर उनको देगा, बट जो आज मिल रहा है वो इनका पास्ट के कारण है। वैसे ही आज हमारे साथ अगर अभी कुछ गलत हो रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट, इट इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट। परंतु आज अगर हम अच्छा करने लग जाए तो वो कैसा सीड होगा, दैट विल गिव मी गुड फ्रूट्स इन फ्यूचर, यस और नो? यस। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलता है अपने को। ऐसा नहीं है कि हम आम का बीज बोएंगे तो हमको एप्पल मिल जाएगा, वी विल नॉट गेट दैट। ओके, हाउ वन can know what he has done in the past to suffer today? सिंपल सा है, अभी अपने बात किए थे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। We cannot blame others. First, we have to understand, yes, something I have done wrong. पहला तो हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, yes, something has been wrong. That's why अभी ये हो रहा है। अगर हम कर्मा को समझ पा रहे हैं तो सिंपली है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो तो हम लोग आने वाले 2 सीरीज में बताने वाले हैं कि उसके लिए क्या करना है। But right now we have to accept first, we have to understand. तो लॉ ऑफ कर्मा का 3 है एस्पेक्ट। फर्स्ट, जो जैसा बीज बोए वैसा, अगर हम लोग एक बीज के जाने, और दूसरा चीज है आज अगर एक बीज बोते हैं तो क्या एक ही फल मिलता है क्या, या अनेक फल आते हैं? वन सीड गिव्स ओनली वन फ्रूट और इट गिव्स मेनी नंबर्स ऑफ फ्रूट्स। इफ I sow a seed of mango, whether I will get one mango only or I will get many mangoes from that one seed, many fruits. Okay, in similar way, whatever we have done in our past, we will get that way, and whatever I will do right now, the future when it will mature, it will mature. So we have to have patience. तो हम लोग नॉर्मली सब सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग अपने पेशेंस खो देते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, सब पेशेंस को हम लोग भूल जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है आज के दिन में, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सो द राइट सीड्स। जो पास्ट में हो गया वो हो गया, भूल जाइए। इफ आई वांट टू चेंज द डेस्टिनी, व्हाट वी आर टेकिंग, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। So to change your destiny, what you have to do, you have to sow the right seed right now. So now the question arises, what are the right seeds? The question will be, what are the right seeds? Yes or no? The right seeds होते क्या है? So the question is, what are the right seeds? It's good. आप अगर देखेंगे, when you will come to pranic healing, you will understand grandmaster has given this right seeds in a very good manner. It's only in 5 virtues, 5 चीजों से आप अपने गुण को डेवलप कर सकते हैं। You can develop your character through that 5 things. But अगर हम लोग उसको डीपर अंदर में जाएं तो बहुत सारे पॉइंट्स। सबसे पहला चीज, what are the right seeds? The right seeds is about love. You have to sow the seed of love. You have to sow the seed of peace. You have to sow the seed of harmony. So now when we talk about love, is it only physical love? It may be emotional love, it may be mental love. How it's mental love? Through blessings, thinking positive about a person, appreciating a person, that is a positive. We are talking about the aspect of love. So what is the other part of love? It's anger. So now I want to little bit touch on the anger also. तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एंगर शो कर देते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं लोगों को, और गुस्सा दिखाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं कि मैंने गुस्सा किया, बहुत सही किया। देखिए, अगर आप गुस्सा करते हो और उस गुस्से से आपकी पीस अफेक्टेड होती है
तो दैट इज नॉट राइट एंगर, पहला चीज। दूसरा चीज आपको ये बात ध्यान रखना होगा, एंगर बैड लक लाता है लाइफ के अंदर में। बैड लक क्यों लाता है इसको आप समझिएगा, ये भी कर्मा की तरह चलता है। जब आप एंगर शो करते हो तो आप क्या करते हो, सामने वाला का ग्रोथ में ब्लॉकेजेस लाते हो। जब आप एंगर करते हो तो वो डर जाता है, वो डर जाता है, तो हो सकता है उसका ग्रोथ अफेक्टेड हो जाए। उसका ग्रोथ अगर अफेक्ट होता है तो आपका ग्रोथ अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। कैसा सीड आपने बोया, खाली एंगर का सीड तो नहीं बोया आप, साथ साथ में क्या उसके कारण से उसको अफेक्ट क्या हुआ, उसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ। तो मैं इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, आप सुनना चाहोगे? ये महाभारत की स्टोरी है। यस, ओके। महाभारत में क्या होता है, जब युद्ध होता रहता है तो उस समय में एक उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो एक मॉन्स्टर होते हैं, और वो जब लड़ने आते हैं तो उनके साथ ऐसा है कि उनके साथ जितना एग्रेशन दिखाया जाए वो उतना ही स्ट्रांग बनते जाते हैं, उतना उनका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। तो जितने योद्धा थे सब उसके साथ हार जा रहे थे। क्यों हार जा रहे थे? क्योंकि वो जब भी कोई योद्धा आ रहा था वो बहुत एग्रेसिवली आ रहा था, और एग्रेसिवली आने के कारण वो और स्ट्रांग होते जा रहा था। तो युधिष्ठिर जब आता है लड़ने के लिए तो युधिष्ठिर को समझ में आ जाता है कि यार ये जितना इसके साथ एग्रेशन दिखा रहे हैं उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होते जा रहा है। तो युधिष्ठिर क्या करता है, उसके साथ में थोड़ा सा लव तरीके से उसके साथ डील करता है। ऐसा नहीं कि उसके साथ युद्ध नहीं करता है, परंतु उसको गुस्सा नहीं, माने उसको गुस्सा नहीं दिलाता है। वो बहुत शांत तरीके से बात करता है। उसके कारण से क्या होता है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाता है, और जैसे जैसे उसका स्ट्रेंथ कम होते जाता है युधिष्ठिर को मौका मिलता है और उसको मार देता है। तो इसी तरह से अपने एंगर है। मैं जो कल की स्टोरी बता रहा था, वो स्टोरी क्या है, सामने वाला आपको प्रोवोक तब तक नहीं करेगा जब तक आपके अंदर में एंगर एनर्जी नहीं होगी। बिकॉज आपके अंदर में एंगर एनर्जी है तो आप वैसा ही एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे सामने में, जो आपके अंदर में वो एंगर को और बढ़ाएगा। वो सिचुएशन क्रिएट होगा जिस कारण से आपके अंदर में एंगर आएगा। तो सबसे पहले तो हमारे को एंगर पे ध्यान देना है, बिकॉज बिलीव मी, एंगर ब्रिंग्स बैड लक। आपको लॉ ऑफ कर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया ये बात। पहला बात अपने फर्स्ट सेशन में बात की थी कि हम जैसा एनर्जी रखते हैं वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मेरे सिस्टम में एंगर है, सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा, तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। अपने अंदर में एक अपने लोग सोचते हैं ना कि भगवान अपने को पनिशमेंट करता है। भगवान कभी भी किसी को भी पनिश नहीं करता है। हम लोग भी अपने बच्चों को कभी पनिश नहीं करते हैं, तो भगवान के तो हम लोग बच्चे हैं, तो भगवान हम लोग को क्यों पनिश करेंगे। वहां खाली एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वहां एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है, वो जो रखता है उनको क्या बोलते हैं? द पर्सन हु कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर कर्मा। So the person who keeps the records of our karma, he just communicate with us. चित्रगुप्त, yes. So he takes records. तो आप पॉजिटिव करते तो वो ऐड हो जाता है, आप नेगेटिव करते तो ये हो जाता है। तो बस उसके अनुसार आपको सामने चैलेंजेस आते रहते हैं, बस और कुछ नहीं है। So we have to be aware of this first thing, right seed. We have to sow the right seed of love. We have to sow the seed of faith. We have to sow the seed of trust. दिस इज द राइट सीड। अगर आप ये सीड्स रो करोगे तो आपको फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा। एंड बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग्स इन माय लाइफ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आज मेरे लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हैं, मेरे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। और वो जो चैलेंजेस आते हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीवन एल्स, इट इज बिकॉज ऑफ मी ओनली। बस पास्ट में बहुत सारी चीज किए रहे हैं जिसके कारण से चैलेंजेस आते हैं। बट शुड आई बी अफ्रेड ऑफ इट? नो, I should not be afraid of it, because
I have to accept what is happening with me, and I'm not blaming others. But if I have patience, I have trust in God, I know I will cross these challenges. जैसे अपने बच्चों को अपने लोग कुछ बार बार कोई मिस्टेक करता रहता है बच्चा, तो अपने क्या करते हैं, उसको अपने बोलते हैं ये करो वो करो वो करो। अगर वो ठीक होने लग जाता है तो क्या करते हैं अपन लोग, उसको कुछ नहीं बोलते हैं, उसकी फिर कुछ गलतियां जो है हम लोग माफ करते जाते हैं। तो वैसे ही भगवान भी है हम लोग के लिए, तो वो देखता है कि हम सुधरने का कोशिश कर रहे हैं तो माफ करते जाते हैं। तो दिस इज व्हाट, तो हम लोग को जब भी अपना अपने ऊपर में काम करने का टाइम आता है तो हम लोग सोचते हैं एक पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज नॉट द केस। सो अगेन लॉ ऑफ कर्मा, तीन चीज, sow the right seed, and if we sow the right seed we will gain the right fruits, and whether we will gain one fruit, we will gain many. And third is what, the fruit takes time to get matured. So don't expect कि आज आपने अच्छा काम किया तो आपको आज ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा. It will take time, but when the time will come you will get it. So you have to have patience. So first is right seeds, and right seeds we talked about love, verbal, mental and emotional. तो आपको जो अपने लाइफ में चाहिए वो दीजिए ना. अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में लव चाहिए तो यू ट्राई टू गिव लव टू अदर्स. यू वांट अप्रिशिएशन इन योर लाइफ, यू ट्राई टू अप्रिशिएट अदर्स. सिंपल, एकदम सिंपल है और कोई डिफरेंस नहीं है. आप किसी भी धर्म में चले जाइए, सब धर्म में ये बात होता है. नाउ नेक्स्ट वी कम, व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजिंग आवर डेस्टिनी, तो डेस्टिनी के अंदर में नॉर्मली हम लोग क्या कि लोग हमसे बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं, लोग मेरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं. उसी तरह से नेक्स्ट आता है, लोग अपने सोचते हैं कि हमारे पास भी पैसे होने चाहिए, वी शुड ऑल्सो हैव मनी इन आवर लाइफ. सो अगर हम लॉ ऑफ कर्मा फॉलो करते हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसा मिलेगा. तो अगर मैं मनी के बारे में बात करता हूँ तो आप क्या बोलते हो, आपको मनी कैसे मिलेगा, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए उस मनी से. अगर आपको अपने लाइफ में बहुत मनी चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, देना देना पड़ेगा. गुड. सो यू हैव टू बिकम जनरस, यू हैव टू हेल्प पीपल विथ मनी, बट एट द सेम टाइम आपको एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप स्टीलिंग ऑल्सो. आपको चोरी करना भी बंद करना पड़ेगा. तो जब हम चोरी करना बंद करना पड़ेगा, मैंने अगर आज कोई मेरे साथ कोई चीटिंग कर रहा है तो उसका पास्ट में हमने कहीं चीटिंग किया है, बट आज हमको चीटिंग करना बंद करना पड़ेगा. नाउ वी कम्स अबाउट स्टीलिंग, छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी बातें, लाइक पायरेटेड मूवीज, पायरेटेड सॉन्ग्स. ये क्या है, ये छोटी छोटी चीज लगती है कि यार क्या दिक्कत है, ये तो 50 रुपए का चीज मिलता है, मिल गया कर लिए. सॉफ्टवेयर को, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करते हैं. We have to understand the person who is making this CDs, those who are making this audio or the software, they are spending a lot of money in their research and development, and we are using it the pirated. We are not paying for it, we are stealing. So if I want to change my destiny कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो तो मेरे को आज बंद करना पड़ेगा. We have to stop it. And what is the right seed to sow? We have to start being generous. अगर हमको मनी चाहिए लाइफ में तो वी हैव टू गिव मनी. अगर हमको टाइम चाहिए तो वी हैव टू गिव सम टाइम. वी नीड पीपल्स टाइम. सो आप टाइम देना चालू करो. यू हैव टू बी जनरस इन गिविंग. इमोशनल, यू हैव टू हेल्प अदर इमोशनली. हम लोग बहुत बार किसी और का आइडिया चोरी कर लेते हैं, वो नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू स्टॉप दैट. You have to sow the right seed, right emotions. So हमारे लाइफ में इतने चैलेंजेस होते हैं, हम लोग यहाँ पे सिचुएशन में फंस जाते हैं. So ऐसे एक बाइबल में एक स्टोरी है जेकब की. जेकब नाम का लड़का था, वो कुछ फायदा उठाने के लिए अपने फादर को बेवकूफ बनाता है, और जिससे उसका जो भाई है उसको कुछ बेनिफिट मिलना था, वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है. जब उसकी मदर को पता चलता है कि उसने कुछ ऐसा किया है तो उसकी मदर जो है उसको बोलती है भाग जाओ वहां से.
और वो अपने कोई कजन के पास में चला जाता है, कजन अंकल के पास, और वहाँ काम करने लग जाता है। बट इन द प्रोसेस क्या होता है कि उसका जो भाई है वो पागल हो जाता है। अब वो अपने अंकल के पास जाता है, वहाँ वो काम करता रहता है, वहाँ पर उनकी बेटी से उसको प्यार हो जाता है और वो सोचता है उससे, वो बोलता है कि मेरे को इसी से शादी करना है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम 7 साल मेरे पास में काम करो, तुम मुझसे शादी कर लोगे। वो 7 साल वहाँ काम करता है और उसके बाद फिर उसकी जो शादी होती है उसकी बहन से शादी हो जाती है। तो बोलता है मेरे को तो उससे शादी करनी थी। तो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, 7 साल और काम करो, उसके बाद हो जाएगा। तो वो 7 साल फिर काम करता है वहाँ, और फिर उसकी शादी हो जाती है, उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। अब बाद में जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है उसके साथ उसको बहुत प्यार रहता है, ही लव्स दैट लॉट। और लास्ट में क्या होता है कि उसके जो बाकी 2 बच्चे होते हैं उसको उससे मजाक करते करते बोलते हैं कि वो जो छोटा वाला है उसको जानवर ने मार दिया, वाइल्ड एनिमल हैज किल्ड दैट चाइल्ड, और वो पागल हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कितने साल आगे उसने झूठ का बीज बोया था, लाई। उसने वहां झूठ बोला और उसको कितने बार झूठ का सामना करना पड़ा। उसके उस एक झूठ बोलने से एक उसका भाई पागल हो गया, ये खुद भी पागल हुआ। क्या वो इमीडिएट पागल हुआ? नहीं ना, टाइम लगा। क्या उसको इमीडिएटली झूठ बोला गया? नहीं, टाइम लगा। परंतु एक झूठ के बदले कितने बार झूठ मिला उसको, और झूठ के अगेंस्ट में झूठ ही मिला। जैसा सीड बोया वैसा ही उसको बीज, उसका फल मिला उसको। So this is all about law of karma. If you can understand it very properly, nothing like it. So सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों को अभी नेक्स्ट ये भी बात ध्यान रखना कि झूठ, अननेसेसरी जो झूठ बोलते हैं उसको भी बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है कि आपको इतना ऑनेस्ट होना होगा कि आप किसी को हर्ट कर दो, बट आपको उस ऑनेस्टी में भी ध्यान रखना होगा कि कितना ऑनेस्टी। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो क्या होता है कि हम लोग सामने वाले के आंख के सामने एक पर्दा डाल देते हैं और बार बार झूठ उसको बोलते जाते हैं। तो क्या होता है, उसके आंख के सामने पर्दा गिरता जाता है। तो कभी इसका रिजल्ट क्या होता है मालूम है? बहुत बार क्रिटिकल टाइम जब होता है ना, क्रिटिकल टाइम जहां पर कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना होता है, उसी समय में आपको कोई झूठ बोल देता है और आप उस बात को विश्वास कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि आपके पास में वो कर्मा रहता है, पिछला। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीपल को जज करें। समझ लीजिए आपके लाइफ में, आपके आसपास में किसी के साथ ऐसा हो गया तो आप ये जज कर रहे हैं तुम तो झूठ बोला था इसलिए तेरे साथ ये झूठ बोला। इसका मतलब ये नहीं होता है। वी हैव टू बी कंपैशनेट, वी हैव टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ, नॉट अबाउट अदर्स। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को क्या करना है। सो वी हैव टू सो द राइट सीड। उसके बाद हम लोग क्या होता है, भगवान को दोष देते हैं। हम लोग के हेल्थ के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम लोग भगवान को दोष देते हैं ना, यार भगवान मेरे साथ ही करना था, ये था वो था। बट क्या भगवान इतना अच्छा बॉडी दिया हम लोगों को, बट डू वी डू फिजिकल एक्सरसाइजेस? हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते ही नहीं है। एंड वी वांट टू चेंज आवर डेस्टिनी। इफ यू वांट टू चेंज आवर डेस्टिनी वी हैव टू कीप आवर फिजिकल बॉडी फिट। वी हैव टू डू एक्सरसाइजेस फॉर आवर बॉडी। टाइम से उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। We want good health, but we eat junk foods. We have to think about। और अभी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है सारे मैंने मेरे जनरेशन से ही मेरे को मालूम है। मैं भी खुद बहुत ज्यादा खाने का शौकीन हूँ और उल्टा पुल्टा खा ही लेता हूँ। तो जब मेरी हेल्थ अफेक्ट होती है तो मेरे को कर्मा याद आ जाता है कि मैंने अपना बॉडी का टेक केयर ही नहीं किया, उल्टा पुल्टा खाया। और जब अफेक्ट होती है तो फिर वापस ठीक खाना चालू कर देता हूँ। जब मैं ठीक करना चालू कर देता हूँ मेरा फिर वापस बॉडी ठीक होने लग जाता है। तो इट्स लाइक अ लॉ ऑफ कर्मा। मैं इस बॉडी का टेक केयर नहीं किया तो बॉडी मेरा टेक केयर नहीं करता है। यस, समझ में आ रहा है अपने डेस्टिनी कैसे चेंज कर सकते हैं, कहां हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। नाउ डू यू बिलीव दैट यू कैन चेंज योर डेस्टिनी? Can you raise your hands, those who are you are agreeing that yes, by knowing this fact of law of karma we can change our destiny?
वाओ, गुड। सो फ्रेंड्स, इन प्राणिक हीलिंग हम लोग खाली यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात नहीं करते, यहाँ हम लोगों को टेक्निक मिलता है। यहाँ इतने सारे टेक्निक्स मिलते हैं हम लोगों को, जिससे कि हम लोग इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकें, हम लोग एंगर से ओवरकम कर सकें। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये हम तो आज ही आपको इतना कुछ बोल रहे हैं, कल ही मैं अभी बताया कि आपको मेरे को गुस्सा आया जोर से, बट आप अंडरस्टैंड कीजिए, एक समय जब गुस्सा आता था, वो गुस्सा मेरा दिनों दिन चलता था, मैं सॉरी नहीं बोल सकता था, परंतु आज मेरी सिचुएशन ऐसी है, गुस्सा आया, विद इन अ मिनट वो गुस्सा निकल गया, विद इन अ मिनट मेरे को अंडरस्टैंड हो गया, रियलाइजेशन की गलती मेरा भी था इसमें। बट बिलीव मी, अगर कल ये सिचुएशन नहीं होता, आज ये सेशन भी नहीं होता। कल ये सिचुएशन हुआ, एंड रियली आई डेडिकेट दिस सेशन टू माय फ्रेंड। आप सोचिए, इतना अच्छा फ्रेंड है, फिर भी मेरे को गुस्सा आ गया उसको। क्यों आया? क्योंकि जस्ट मेरे को एक रियलाइजेशन करना था कि अरे भाई, डोंट टेक इट ग्रांटेड एवरीथिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट। ये तीन चीज मेरे माइंड से निकल गई थी। कभी कभी ऐसा होता है, जिनको हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो अपने बहुत करीब होते हैं, हम लोग वही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वही हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं सिचुएशन को, वही हम लोग ना ब्लेम करते हैं उसको। यही कोई और किया होता तो हम ब्लेम ही नहीं करते, क्योंकि हमको बॉदर ही नहीं करते। So this is also karma, and this is what we are together. जब आप सोल रियलाइजेशन क्लास करोगे, ग्रैंड मास्टर ने कितने तरीके से बताया कि हाउ वी चूज दिस लाइफ में, जो भी हमारे आसपास आते हैं, कैसे हम लोग चूज करते हैं इसको। बिफोर वी टेक बर्थ, एवरीथिंग इज प्लान्ड। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ट्यून हार्ट मेडिटेशन का फायदा क्या होगा। आप ट्यून हार्ट मेडिटेशन में कौन कौन से एनर्जी को देते हो? हाउ मेनी ऑफ अस हैव डन रेगुलर ट्यून हार्ट मेडिटेशन इन लास्ट 1 वीक? Raise your hand, raise your hand. Yes, just from your participants, raise your hands, I can understand. So friends, still आपको अगर लॉ ऑफ कर्मा समझ में आ गया है, बिलीव मी, आप ट्यून हार्ट मेडिटेशन रेगुलर कीजिए 5 PM पे। लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे ट्यून हार्ट मेडिटेशन की, इस टाइम हम लोग बात करेंगे ग्रेट इन्वोकेशन की, कि हम लोगों को क्या चाहिए, अपना कर्मा, हम लोग को अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है, तो हम लोग को क्या चाहिए? हमारे सिस्टम में लाइट, लव एंड पावर, तीन चीज आना चाहिए ना। हम लोग लास्ट टाइम भी बात किए थे कि जब हम लोग अपना हॉरोस्कोप किसी को दिखाने जाते हैं, तो हॉरोस्कोप दिखाने से हम लोग को क्या बोला जाता है? यू गो एंड जस्ट प्रे टू लॉर्ड शिवा, या गो एंड प्रे टू लॉर्ड कृष्णा, और या दे आस्क अस टू गो एंड प्रे टू गॉडेस सरस्वती। थ्री थिंग्स, इट मीन्स व्हाट? लाइट, लव एंड पावर। शिवा इज पावर, सरस्वती इज लाइट, एंड कृष्णा इज लव। तो आपके सिस्टम में जो एनर्जी की कमी है, उस एनर्जी को बोला जाता है बढ़ाने के लिए। एंड व्हेन वी डू ट्यून हार्ट मेडिटेशन, द डिवाइन एनर्जी कम्स, एंड डिवाइन एनर्जी इज मेड ऑफ डिवाइन लाइट, लव एंड पावर। तो आपका सिस्टम बैलेंस होता है। उसी तरह से ग्रेट इन्वोकेशन भी जो हम लोग जब करते हैं, तो इससे हम लोग पूरे पृथ्वी पे लाइट, लव एंड पावर ला सकते हैं, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, पैंडेमिक का जो सिचुएशन चल रहा है, तो लाइट, लव एंड पावर से ब्लेस करना है। सो आपके लिए बहुत अच्छा चीज है, मैं अभी बताऊंगा आपको ग्रेट इन्वोकेशन के। उसके बाद आपके साथ में क्वेश्चन होगा कि मैं ग्रेट इन्वोकेशन करूं कैसे रोज। तो हम लोग जीएमसी के पिलर ऑफ लाइट पे मंडे टू फ्राइडे हम लोग जीएमसी के पिलर ऑफ लाइट में मंडे टू फ्राइडे 6:15 to 6:30 ग्रेट इन्वोकेशन करते हैं। वी गैदर टुगेदर
in numbers and bless Mother Earth, bless India, bless West Bengal, and we bless the entire country, even the entire world we bless with divine light, divine love and divine power. अब आप समझिए, अगर आप लॉ ऑफ कर्मा समझ गए हैं, तो अगर आप डिवाइन लाइट, लव एंड पावर से सबको अगर ब्लेस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? प्लीज respond in the chat what you will get if you bless the entire world with light, love and power. What you will get? What will come back to you? Only 2-3 people are responding. What happens to rest? Good. So are you interested in generating this good karma? Are you interested in developing your assets? How many of us, please raise your hand, how many of us are interested in creating assets? How many want to create assets for yourself so that you can continuously harness good things in your life? Very good. So friends, Twin Heart meditation 5 p.m. every day at GMCK's Pillar of Light. Great invocation from Monday to Friday, 6:15 to 6:30 p.m. And friends, there are many more things. So अभी जो है, कल का जो सिचुएशन हुआ, मैं अब उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस. So important part is that how you will get yourself calm, because anger आया ना, तो anger को आप calm कैसे करोगे? I will share 2 techniques with you. पहला बात, we understand what is karma. Karma is action. And what is an action? Action can be physical, emotional and mental. Okay? Yes or no? और जब आपको गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से के साथ जुड़ जाते हो, तो आप क्या करते हो, उसको आप सोचते हो जो गुस्सा है वो आप ही हो, और आप उस गुस्से से अटैच जब हो जाते हो तो क्या होता है, वो गुस्सा आपके अंदर में रहता है और आप वैसा ही सिचुएशन अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में. सामने में और कोई आदमी आता है, वो और कुछ बोलता है, आप और गुस्सा होते जाते हो. ऐसा होता है ना आपके साथ में? So what I did yesterday is I just disconnected the line. Yes, I know that it was wrong. कि अगर हम बात कर रहे हैं और बात करते करते अगर हम लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो आई एम हर्टिंग द पर्सन. बट बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर मैं कंटिन्यू रखता तो आई वुड हैव हर्ट बोथ कॉन्स्टेंटली, नॉट इन विद लाइक एंगर. एंगर के बाद धीरे धीरे वो क्या होता, मेरे वर्ड्स में आ जाता, हो सकता है मेरे वर्ड्स गलत होने लग जाते, हो सकता है मैं अपने आप को कर्ज करता, हो सकता है सामने वालों को कर्ज कर देता. तो द important was to bring peace in my system, calmness in my system. तो लास्ट टाइम अपने बात किए थे ब्रीदिंग के ऊपर में, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, और मैं उस समय में यही किया, लाइन डिस्कनेक्ट करके मैं किसी से बात नहीं किया. मैं द फर्स्ट थिंग आई डिड इज आई स्टॉप दैट एंड स्टार्टेड ब्रीदिंग. Have the right way of breathing. In pranic healing you are being taught how to have a right breathing, but however I started breathing, inhale exhale. I started focusing on my breath, inhale exhale, and then I dissociate myself not with the person, I dissociate myself with the emotions. What was the emotion of anger. I dissociate myself with the thought. क्या थॉट था, उसने मेरे साथ गलत किया. I dissociate myself with my physical body. Why? क्योंकि मेरा फिजिकली वायलेंट हो सकता था, तो मेरे को अपने आप को डिसोशिएट करना था इस सिचुएशन से, मेरे को अपनी फिजिकल बॉडी से, इमोशन से, थॉट से. क्या जो मैं सोच रहा था वो सही था? नहीं. जो मेरे अंदर इमोशंस आ रहे थे वो सही थे? नहीं. तो क्या ये सोच थी मेरी थी? ये जो सोच थी वो मेरी थी? नहीं. ये जो इमोशंस था वो मेरा था? नहीं. ये जो वायलेंट एनर्जी आ रही थी वो मेरी थी? नहीं. तो हमको इससे डिसोसिएट होना है.
and very simple technique. Believe me, my friends, it takes only 30 seconds. Take only 30 seconds. Deeper understanding of this technique, you come to understand in soul realization class. इसका deeper understanding आपको soul realization class में होगा, but even if you practice sincerely, which I am going to share with you, believe me, my friends, you will have tremendous change in yourself. So what we will do is the thing which I did, and how you will experiment it. Are you having any anger in your system right now? If you are not having, then I can create that anger in you. How many of you are feeling angry right now? कि यार ये इंसान खाली वैसे बकबक किए जा रहा है, 1 घंटा हो गया लास्ट. कभी लॉ ऑफ कर्मा बोलता है, कभी एक्सेप्टेंस बोलता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है, कभी टॉलरेंस बोलता है, बस बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है. हम लोगों को तो बोलने का ही मौका नहीं देता. So how many of you are feeling angry right now? No one? No one? No. Okay. Okay. So what we will do is, again we will explain. We will create anger in ourselves. Okay. So that we can understand the power of this technique. Just you think about a person, or you think about a situation in your life, and you go back to that situation and see yourself in that situation which was not pleasant. वो अच्छा नहीं था आपको. वो सिचुएशन में जाने से ही आपको बहुत गुस्सा आने लग जाता है, या आप ब्लेम करना चालू कर देते दूसरे के ऊपर में. आपकी बॉडी बहुत वाइब्रेट होने लग जाती है, इच्छा करता है कुछ कर दें. क्यों हम उस सिचुएशन में ऐसा किए नहीं? ऐसा सिचुएशन में जाइए. जस्ट गो टू दैट सिचुएशन. जस्ट क्लोज योर आईज slowly and gradually. Go to that period of your life, or go to that situation where you have not been able to take the right decision, and because of that you lose something in your life. And when you are thinking about the situation, are you feeling angry right now? Are you feeling agitated? Are you feeling irritated right now? Yes, you are feeling agitated. Okay, you are feeling agitated. So whenever if you want to accept a situation in your life, you have to think that everyone makes mistakes. Everyone makes mistakes. So what we have to do is, we have to follow the teaching of the Christ. According to the Christ, if you want to develop tolerance, you have to have a deep compassion. And to have a deep compassion, the first and foremost thing is to forgive. You have to forgive the person. You have to forgive that situation. And you have to forget that situation. And you have to learn your lesson. So learning of lesson you can understand when you are doing twin heart meditation, or you are being aware of your breath, and you try to inner reflect that situation. Then you can be aware what are the faults has happened. When you forgive that person, you are accepting that everyone makes mistakes. Everyone makes mistakes. So what I did at that moment of time is just right now close your eyes. Whatever thing I did,
I will share something with you. Just now close your eyes. Inhale slowly. Exhale slowly. Be aware of your breath. And now I have to dissociate myself from the physical body, emotional, and mental. So I said to myself, I am not the body. I am not this physical body. I am not this violence. I am not this violent energy. I am not the body. I am not the body. This anger is not me. This emotion is not me. So I'm not this emotions. I'm not this emotions. I'm not this emotions. These thoughts are not mine. They're just out of anger. These thoughts are not mine. I'm not these thoughts. I'm not these thoughts. I'm not these thoughts. I'm not this mind which is producing thoughts. I'm not this mind. I'm not this mind. I'm not this mind. I'm a spiritual being on a human journey. This was my experience. This was my test. This was my examination. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, and divine power. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, and divine power. I have that love, that power, that intelligence that I can control this mind, these thoughts, and these emotions. I am one with my higher soul. I'm a child of God, connected with God, one with God, and one with all. In this situation right now, try to be aware of that situation once again. You go back to that situation once again, which was creating irritation or anger within you. Any difference? Any difference? What is the difference? Can you write in the chat what is the difference you are feeling? Very calm. Are you able to dissociate yourself with that situation? So this was the technique which I used at that moment of time. So first, I just controlled myself by disconnecting the line. I avoided the communication, and then immediately I just was aware of my breath, and then I started this affirmation. I am not this thought. Just say I am not this body, I'm not this emotions, I'm not this thought, I'm not the mind. Mind is just an instrument of the soul. I'm a spiritual being on a human journey. I'm a spiritual being of divine light, divine love, and divine power. I'm a child of God, connected with God, one with God. I don't know about the tapping technique,
But this is the one of the technique which I am sharing with you, which I have received from my teacher also. And since I could have shared with you this technique, there are many more techniques which I used, which we had been taught in Aratic Yoga. That technique also I used, but right now I cannot teach that. And also there was one technique of that is called whiteboard technique that is being taught in psychotherapy. So that also I cannot share right now because you all have to do that psychotherapy class, then I can share with you all. So that technique also I used. And then the important part was I used two things, tune heart meditation and great invocation. I used great invocation to bless the entire world, not that person. And I used twin heart meditation to bless the entire world, every person, every being with peace, with harmony, with understanding. And at the same time, I asked forgiveness. So I just asked the forgiveness. And then, so if you want to learn more about forgiveness, we are having a very beautiful series of 1 month that is past uh, forgiveness with our past incarnations. That is a very beautiful series, and believe me, I have also attended that sessions. And in that session, you will learn. Even if you're not a pranic healer, then also you can learn how to forgive. And the good part is that in every day, you are being uh, given knowledge about that particular aspect. Why we should forgive that situations. I will request every one of you to just join that group of past incarnation, forgiveness with past incarnation. We'll request our center to share with you all the link for that past incarnation, and please go and join that. You will learn how to forgive. Yes, would request Tyali, please share the link with people. They are asking the link. Please share with them. So please join that. So you will learn about that forgiveness. So right now, what we will do is we will just do a small forgiveness, and then we will do tune heart meditation and bless the entire world with divine light, love, and power with great invocation. So you will understand how to do great invocation, and then you can join that group of great invocation that is open to all. So even if you are not a pranic healer, you can attend. You can bring your friends and family members to for that also. And when you will bless, you will create that karma. And if you want to change your destiny, you can follow that. Okay, so let's do something. We will do a small tune heart meditation. Uh, Kyali, please share the link in the chat group also. Yes, sir. Please share the link of great invocation and also forgiveness. Put your hands together to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Divine Providence, with the blessing of whom everything is possible. Thank you for your priceless blessings. Thank you for your divine light, divine love, divine guidance, divine love, mercy. With inner healing, physical healing, with the inner strength to do what is right and refrain from unwholesome thoughts, actions, and behavior, with divine help and divine protection, with illumination, abundance, prosperity, with wisdom, discernment, goodwill, and the will to do good. To all the spiritual gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, thank you all for your priceless blessings. Internally say, I am not the body, I am not the emotions, I am not the thought, I am not the mind. Mind is just an instrument of the soul. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, and divine power. I am one and connected with my higher soul. I am a child of God, connected with God, one with God and one with all. This is the truth.
Raise your hand in the blessing position. Be aware of your heart. Smile at your heart. Feel the love, the gratitude, and respect for oneself. Smile at your heart. Visualize a small earth in front of you. The energies of love, peace, harmony, understanding, reconciliation, life, light, happiness, joy, faith, trust from the Supreme God coming down through your heart, through your hand, it's going down into Mother Earth. Every person, every being is being blessed with love, with peace, with harmony, with understanding, with reconciliation, with forgiveness. Visualize that situations of your life which you are not able to forgive. Bless that situation, bless all of them, all the people involved in this situation with forgiveness, with patience, with tolerance, with reconciliation, with hope, with faith, with trust. Be aware of your crown, energies of loving kindness, goodwill, and the will to do good from the heart of God coming down through our spiritual gurus, through great ones. Crown through your heart, through your hand, it's going down into Mother Earth. Every person, every being is being blessed with loving kindness, goodwill, and the will to do good. Everyone is not just talking about forgiving and asking for forgiveness. Actually, they are acting out this forgiveness. They're actually reconciling their sins. They're actually accepting situations, taking their own responsibilities of whatever has happened in their life, and showing compassion in this process. Everyone is involved in changing oneself, and one day everything is getting changed. The entire world is getting changed. Be aware of your heart and crown together from the heart of God. The energies of love, peace, harmony, warmness, tenderness, caring, joy, bliss, oneness, divine oneness, good health, success, prosperity, abundance, passing through our crown, through our hand, through our heart, going down into Mother Earth. Every person, every being is being blessed with this divine oneness. Be aware of the Mother Earth. Be aware of every person, every being. Be aware of the situation in the entire world right now. Because of pandemic, because of the fight going between Israel and Palestine, this we will do one great invocation. The great invocation.
point of light within the mind of God. Let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on let light descends on the entire humanity. So be it. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descends on earth. Let love descends on entire humanity. May the grade of God return to us. So be it. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of every person, every being. The purpose which the Holy Masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on earth. Let goodwill and the will to do good descend on entire humanity. So be it. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light, love, and power descend on earth and manifest the divine plan on earth. Let light, love, and power descend on entire humanity and manifest the divine plan of the entire humanity. So be it, so be it, so be it. Stabilize, stabilize, stabilize. Put your hands down. Visualize a star above your head, 1 feet above your head. Keep your tongue to the palate. Internally, we will chant Om. Between the two Om, be aware of the gap, be aware of the light. Om. Just let go.
Slowly and gradually come back to the body. Move your fingers, move your feet. Raise your hand in the blessing position. Visualize Mother Earth. Let us release the excess energies. Mother Earth be blessed with divine light, divine love, divine power. Mother Earth be regenerated, revitalized, and regenerated. Every person, every being be blessed with good health, happiness, success, prosperity, abundance, with the inner strength to do what is right and refrain from unwholesome thoughts, actions, and behavior, with divine help and divine protection, with illumination, abundance, and prosperity, with wisdom, discernment, with goodwill and the will to do good. Visualize your entire family, your office, your employees, clients, associates. Visualize your home, your offices. Visualize all your projects. All of them be blessed with divine light, divine love, divine guidance, divine love, mercy, with inner healing, physical healing, with the inner strength to do what is right and refrain from harmful thoughts, actions, and behavior. With divine help and divine protection, with illumination, abundance, prosperity, with wisdom, discernment, goodwill, and the will to do so good. Visualize all your friends, relatives, all your family members, whosoever is suffering right now. May all of them be blessed with divine light, divine love, divine power, with compassionate, purifying light and soothing, healing energies. May all of them get recovered rapidly and properly in the name of God. So it. Be aware of your wishes. May, with the help and the blessing of the Supreme God, may all the wishes be blessed with divine light, divine love, divine power. May all of them get materialized rapidly and properly in the name of God. So it. So be it, so be it, so be it. Stabilize, stabilize, stabilize. Be aware of the base of the spine. Be aware of your feet. Visualize light going down into Mother Earth. 1 feet, 2 feet, 3 feet, 4 feet, 5 feet, and 6 feet. Mother Earth be blessed with divine light, divine love, divine power. Mother Earth be regenerated, revitalized, and rejuvenated. My body strongly and deeply rooted and connected to Mother Earth. So be it, so be it, so be it. Put your hands together. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Divine Providence, with the blessing of whom everything is possible. Thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, and divine power. Thank you for this priceless understanding. To all the spiritual gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, thank you all for your priceless blessings. I, the soul, sincerely thanks to my friend for this guidance, for becoming an instrument of God, giving me this lesson. I, the soul, sincerely forgive you, and I sincerely ask forgiveness from you. Please forgive me. With thanks and with lots of gratitude, respect, and love. Thank you. Thank you. So, Atma Namaste. Hope you all enjoyed the session. We will meet next week once again with the same. Please invite your friends, family members, all of them. Also come for 5 p.m. Twin Heart meditation. Invite your friends and family members also for this Twin Heart meditation. And next week, again, we will cover the same topic, but that time we'll see what is stored for us. And we will again share some techniques. Don't forget to come next week, because I will be sharing with you one technique of how to remove that part of anger, and also how can you let go your past. Okay, hope everyone enjoyed. Thank you for coming. On behalf of GMCK's Pillar of Light, thank you, thank you, thank you. The session is over.